Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. If at all you are new to my channel, then please do subscribe the channel and press the bell icon to get all the notification about my latest video. You can also join on Telegram channel, but just type the name Learn with Hina so that you can easily get the channel over there. Stay updated over there as I am providing daily questions over there. So daily at 10 a.m. I am providing you 5 questions either of mathematical reasoning, or I'm giving you a DI data interpretation, or I'm giving a question on RC. So you can come up over there, practice and send the images of the questions whichever I'm giving you to solve. After solving it, you have to share the pic in the group at night 10 p.m. I am providing the solution along with audio. So as you know, I have started a new thing over here on YouTube that I am discussing some randomly topic which are from paper 1 and paper 2. So paper 2 I am taking up over here commerce. So I think till now you are knowing my name. So my name is Hina Jain. I like to teach and I like to share my knowledge. I am the MCOM topper of my college. So my Telegram channel I have given over here, and on Unacademy I am an educator. You can just type my name Hina Jain, and from there you can easily get my profile. So you can keep supporting me and keep sharing all my videos with your friends. So today I'm going to take a topic of paper 2, which is from your unit 2, that is accounting and auditing unit. We have amalgamation in it, a topic which is important. So we have amalgamation, merger, acquisition, then takeover, absorption. So this all terms are very important for your exams, and I know some of you may get confused in it while understanding it. So I have made a video today for amalgamation and merger. So today we are going to complete amalgamation and merger. So let's get started. So amalgamation क्या होता है? Amalgamation of companies means combining two or more companies and creating a new entity from it. So what it is saying, amalgamation का मतलब होता है कि आप, आई थिंक मैं हाईलाइट कर देती हूँ तो आपके लिए जब मैं ये पीडीएफ शेयर करूँगी इजी हो जाएगा रिवाइज करने के लिए. इट मीन्स व्हाट, कंबाइनिंग, कंबाइन करना. क्या कंबाइन करना? टू और मोर कंपनीज को, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, क्रिएट अ न्यू एंटिटी. मतलब कि एक पूरी की पूरी न्यू कंपनी बन के आ जाती है. ठीक है. सो सबसे बेसिक थिंग आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे कि अमालगमेशन में वी नीड टू और मोर देन टू. ठीक है. कम से कम 2-3 कंपनी तो हमें चाहिए ही होती है अमालगमेशन करने के लिए. एंड उसके बाद में सपोज कोई भी कंपनी ले लो आप, उसे हम, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी बाद में दिया है तो मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, अभी मैं यही चाहती हूँ कि आप थोड़ा खुद का दिमाग चलाओ कि आप कैसी कंपनी को आपके साथ में रखोगे और बाद में कौन सी एंटिटी बनाओगे. सपोज कि अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करूँ मैं तो इस तरीके से भी कह सकती हूँ. आपके फैमिली में से आप किसी का भी नाम ले लो. सपोज कि आपकी मम्मी, आपके पापा, आप और आप. ठीक है, चलो दो ले लेते हैं. ऐसे कर लेते हैं हम, मम्मी और पापा. ठीक है. मम्मी, आपकी मम्मी एक कंपनी है, पापा आपकी एक कंपनी है. दोनों को हम कंबाइन करके एक न्यू कंपनी बना रहे हैं, वो है आप. सो इस तरीके से आप याद कर सकते हो यहाँ पे कि अमालगमेशन में क्या होता है कि वी हैव टू कंपनीज विच इज ओल्ड एंड वी कंबाइन इट एंड मेक अ न्यू कंपनी बाय द न्यू नेम. जैसे कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मम्मी और पापा की एक कंपनी है अलग अलग, उन्हें कंबाइन करके हम मम्मी पापा की कंपनी बना लेते हैं. वैसे ही अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, पेप्सी एक कंपनी है. एंड नहीं, चल पेप्सी का नहीं लेते, कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम. ऐसा कुछ लेते हैं जो आपको याद रहेगा. हाँ. चलो कोई भी ब्रांड आपको जो पता है, जैसे कि ब्रांड ने मिंत्रा का ले लेते हैं एक एग्जांपल. ठीक है, मिंत्रा एक है. एंड दूसरी हम ले लेते हैं मिंत्रा के साथ में अमेजोन ही ले लेते हैं. चलो दूसरी कंपनी है हमारे पास में अमेजोन. ठीक है. अब मैं मिंत्रा प्लस अमेजोन को कंबाइंड करके एक न्यू कंपनी बनाऊंगी और उसका नाम मैं रख दूंगी मिंत्रा अमेजोन. ऐसे सात वाला कंपनी. जैसे कि मैं ए को बी के साथ में कंबाइन करके मैं न्यू कंपनी फॉर्म कर रही हूँ, और वो मेरी न्यू कंपनी जो बन के आएगी उसका नाम होगा ए बी कंपनी. ठीक है. सो इसका मतलब होता है ये अमालगमेशन होता है.
अब अमालगमेशन करते क्यों है, मकसद क्या होता है इनका? गेनिंग एज ओवर द कंपटीशन। एज, एक अच्छा कंपटीशन आपको मिल जाता है मार्केट में। एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनीज बाय कंबाइनिंग देम इनटू वन। सो आप एफिशिएंसी भी आपकी कंपनी की इंक्रीज कर पाते हो अमालगमेशन करने के बाद में। आपका बिजनेस एक्सपांड हो जाता है, यस, एक्सपांड आवर बिजनेस, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, गेनिंग साइनर्जी। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है या कोई फंड्स नहीं है, बट जिसके साथ में आप कंबाइन कर रहे हो उनके पास में ये चीज़ें हैं, तो आप वो भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हाँ, ऑब्वियसली है, जब आप दो कंपनी मिलके आप अपनी ही नई कंपनी बना रहे हो, तो आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स भी बढ़ाओगे आपका। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन अमालगमेशन। अभी अमालगमेशन के अंदर दो होता है, एक तो होता है नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा होता है आपका परचेज वाला मेथड। ठीक है, सो उसके बारे में अभी थोड़ा करेंगे, क्योंकि आपको ये भी पूछा जाता है कि भाई पूलिंग मेथड वाला या परचेस वाला मेथड, कौन सा वाला मेथड एग्जाम में पूछते हैं ना कई बार, अगर प्रीवियस पेपर देखा होगा तो आपने। सो वो करते हैं अभी इन द नेचर ऑफ मर्जर, अगर मर्जर की बात करें, और दूसरा है परचेज के केस में। In this case, the transferee company must acquire whole business of the transferor company which includes, please make a note of this, जो include करता है, क्या include करेंगे? All the assets and liabilities of the transferor company। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो ट्रांसफरी कंपनी जो होगी वो एक्वायर करेगी क्या, जो सामने वाली कंपनी को वो खरीद रही है उसके कंबाइंड हो रही है, उसके सभी के सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज भी वो लेके जाएंगे अपने साथ में। वही अगर परचेज की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं लेके जाएंगे अपसे अपने साथ में। ठीक है, इट विल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन, इट विल नॉट एक्वायर। नेक्स्ट आ जाता है शेयर होल्डर्स हैविंग 90% और उससे ज़्यादा वाले को ही वो कंसिडर करते हैं, नॉट लेस देन 90%, ऐसे आप नोट डाउन कर लेना। उन्हीं इक्विटी शेयर्स को वो अपने कंपनी के अंदर भी वही शेयर होल्डर्स कंसिडर करते हैं। बट यहाँ पे इन द नेचर ऑफ परचेज में ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे नेचर ऑफ परचेज आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब कि यहाँ पे आप क्या करते हो, सिर्फ उनको जो भी उनका परचेज कंसिडरेशन जो भी अमाउंट बन रहा होता है वो अमाउंट हम उन्हें हैंड ओवर कर देते हैं। The claim of equity shareholders to the transferor company must be discharged by। अभी क्या बोलेगा कि जो जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स जो है ट्रांसफरर कंपनी के, तो उन्हें वो डिस्चार्ज कैसे करेंगे? या तो वो उन्हें इक्विटी शेयर्स दे देंगे, ठीक है, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स। अच्छा, ये एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स यहाँ पे ना, ये क्या होगा पता है, यहाँ पे कैश देंगे वो लोग। यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, इसमें मिस्टेक है आई थिंक, थोड़ा पॉइंट लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, ये नोट डाउन कर लेना। वो क्या करेंगे पता है, या तो उनको इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे, जितने के उनके थे वो इक्विटी अपने कंपनी में इशू करके दे देंगे, या कोई छोटे मोटे थोड़े बहुत शेयर्स अगर रह जाएंगे ना, तो उसके बदले में उनको पैसे दे देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी में बी डिस्चार्ज बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स और कैश। तो यहाँ पे दोनों में से भी कुछ भी ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स भी इशू कर लेंगे या कैश के फॉर्म में भी वो उन्हें कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेजर रोल क्या होगा, किसका होगा, इक्विटी शेयर्स ही उन्हें देते हैं। ठीक है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे वो उन्हें दे देंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं अमालगमेशन का। यहाँ पे कंपनी ए है, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी बी है। कंपनी और ए और बी का अमालगमेशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये मर्ज करके एक न्यू कंपनी फॉर्म कर रही है जो कि होगी ए बी कंपनी। नेक्स्ट मर्जर की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले पहले पढ़ लेते हैं मर्जर क्या होता है। Merger is the combination of two companies to form one new company। So कहीं ना कहीं merger और amalgamation सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इनके अंदर। मर्जर भी हम उसी लिए करते हैं कि हमें मार्केट में कॉम्पिटिटिव मार्केट गेन करना है, मार्केट के शेयर्स बढ़ाने हो, आपको ज़्यादा कस्टमर्स मिले या ज़्यादा आपको एडवांटेज मिले, उसलिए हम करते हैं यहाँ पे। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज इन्वॉल्व व्हाट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सो यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप आपकी ट्रांसफर होती है दोनों कंपनी की। बोथ द कंपनीज सरेंडर देयर स्टॉक्स एंड इशू द न्यू स्टॉक एज अ न्यू कंपनी।
अमालगमेशन में क्या होता था, वहाँ पे वो सरेंडर नहीं करते थे अपने स्टॉक्स, बट यहाँ पे अमालगमेशन में क्या, मर्जर में क्या होता है, ये अपने अपने स्टॉक्स जो भी है उन्हें वो सरेंडर कर देते हैं और उसके बदले में नए स्टॉक वो इशू करते हैं न्यू कंपनी में। ठीक है, ये होता है मर्जर के अंदर। सो मर्जर का एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमारे पास में एक कंपनी है, ए कंपनी, जो कि एक्वायरिंग कंपनी है, बी है जो कि एक्वायर्ड है। सो मर्जर ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी। सो यहाँ पे किसका मर्जर हो रहा है, ए कंपनी एंड बी का। द मर्जर रिटेन्स द नेम ऑफ एन एक्वायरिंग कंपनी। एक्वायरिंग कंपनी का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी ले रही है सामने वाली कंपनी को। तो यहाँ पे कौन है, एक्वायरिंग कंपनी ए है। सो ये एग्जाम्पल था। एक डिफरेंस देख लेते हैं, बट उससे पहले मेरे को रिवर्स मर्जर आपको बताना है, रिवर्स मर्जर क्या होता है। सो मर्जर तो हमने पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इनटू वन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड समटाइम्स टू अवॉइड द कंपटीशन। ठीक है, कभी कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि ये वाली कंपनी अच्छी वर्कआउट कर रही है, तो ये मेरे को बहुत कंपटीशन दे रही है मार्केट में, तो मैं इसके साथ में ही मर्ज कर लेता हूँ, ताकि मेरा एटलीस्ट वो कंपटीशन तो हट जाएगा, वो कॉम्पिटिटर राइवल वो हट जाएगा, मुझे किसी और के साथ में compete करना पड़ सकता है, बट वो एक हद तक वो मेरे लिए हट जाएगा। रिवर्स मर्जर में क्या होता है, एज अ कमर्शियल टर्म इट मीन्स व्हेन अ हेल्दी कंपनी इन टर्म्स ऑफ साइज, कैपिटल और लिस्टिंग स्टेटस इज मर्जिंग विद अ वीक कंपनी। तो यहाँ पे मर्जर में हम क्या देखते थे, एकदम हेल्दी कंपनी के साथ में जाती थी, स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ में जाती थी, लार्ज कंपनी के साथ जाती थी। बट रिवर्स मर्जर के अंदर क्या रहेगा, एक अच्छी खासी हेल्दी कंपनी वीक कंपनी के साथ में जाती है। ठीक है, ये होता है रिवर्स मर्जर। अब एक चार्ट देख लेते हैं डिस्टिंग्विश, जहाँ पे अमालगमेशन और मर्जर के बारे में है। दिस जनरली हैपेंस व्हेन बिगर कंपनी एक्वायर स्मॉल वन। सो ये कब होता है, जब बड़ी कंपनियां स्मॉल वन के साथ में एक्वायर करती है। और यहाँ पे क्या होता है, हियर द सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे एक ही लाइन के बिजनेस के साथ में वो मर्ज होती है। जैसे कि जियो और एयरटेल मर्ज हो जाते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, सिमिलर लाइन, क्योंकि उनका लाइन ही क्या है, टेलीकम्युनिकेशन को लेके है। यहाँ पे टाइप्स क्या हो गया अमालगमेशन, एक तो होता है परचेस वाला और एक रहता है वो नेचर ऑफ पुल वाला, मर्जर वाला। ठीक है, दो टाइप रहे इसमें। और मर्जर के अंदर हमारे पास में हॉरिजॉन्टल मर्जर है, वर्टिकल मर्जर है, रिवर्स मर्जर है, को जेनेरिक है, देन कॉन्ग्लोमरेट मर्जर है। ये सब मर्जर के टाइप्स है। ये भी हम करेंगे कुछ टाइम बाद में, बट करेंगे इसको भी याद रखना। ये टॉपिक टाइप्स ऑफ मर्जर भी मैं आपको करवाऊंगी, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। Acquiring company retains its identity and smaller companies loses. So यहाँ पे क्या बोला गया है, जो acquiring company है वो उनकी आइडेंटिटी रखती है, बट जो छोटी कंपनी होती है वो उसकी आइडेंटिटी लूज कर देती है। द एक्वायरिंग कंपनी में रिटेन इट्स आइडेंटिटी। तो यहाँ पे तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है एक्वायरिंग कंपनी को ही दिया जाता है। हियर बोथ द कंपनी इक्वली टेक इनिशिएटिव टू मर्ज। हियर इनिशिएटिव इज जनरली टेकन बाय द एक्वायरिंग कंपनी। सो यहाँ पे ज़्यादा इनिशिएटिव कौन लेता है, एक्वायरिंग कंपनी। इट इन्वॉल्व्स द मिनिमम 3 कंपनीज अमालगमेटेड एंड अदर्स अमालगमेटिंग। और यहाँ पे 2 कंपनीज होगी, एक तो एक्वायरिंग होती है और दूसरी जो मर्ज होने के लिए एंटिटी आएगी। द टारगेट कंपनी आर टिपिकली ऑफ सिमिलर साइज। यहाँ पे सिमिलर साइज नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर साइज मर्जर के अंदर आता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ यहाँ पे चार्ट में पॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, बट कुछ नहीं, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या होगा। The absorbing company is bigger in size and operation. So all the shareholders in the existing companies get shares in the new companies. अच्छा, ये चार्ट रहने देते हैं हम, क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें चेंजेस लग रहा है, तो ये चार्ट फॉर द टाइमिंग हम रहने देते हैं। इसके ऊपर मैं दूसरा चार्ट लेके आऊंगी अमालगमेशन एंड मर्जर का, वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ पॉइंट मर्जर के भी अमालगमेशन के अंदर ये लोग ने लिखा है। हालांकि मर्जर और अमालगमेशन कुछ हद तक सेम है, सेम भी माना जाता है कुछ हद तक, बस थोड़े थोड़े से उनके अंदर डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज कर लिया है। सो नेक्स्ट क्लास जब भी मैं कर लूँगी तो वहाँ पे दूसरा टॉपिक करेंगे हम। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ज़रूर लेना, एंड फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर अप कर लेना। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।